Sakshi, I would like to have a conversation with you. Were you that confident initially before coming here, and what's your experience? So I wanted to take a feedback from your end as well, because a lot of people and a lot of your friends are also watching this video. So I wanted to have a clarity from your end that what's your feedback, and your even father is also sitting here. So what's your feedback and what's your take on it? I mean, what do you feel, what you have learned, and what are the things which we have imparted on you? Over to you. Just share your complete feedback and what was your mindset before coming here, and after taking, it's been more than 3 months right now, right? So that people can also inspire by watching your video, okay? Okay, so at first I was not that confident because I always wanted to learn English, but I can't communicate with other people in English at first. But when I came to our Learnings Academy, then I thought that if Monu, Rahul can do, then even I also can do it. So then I just by your support and just by their support, I learned a lot of things from this academy, like how to overcome the camera fear, how to communicate with other people. Because in today's era, it's really important for all of us to know how to communicate with other people, because it's really important to how can we represent ourselves in an effective way. Okay, because a person who cannot express her or his feelings towards everyone, so they can't do anything, because it's really important in today's era. So yeah, I was not that confident, but after coming here, I know how to communicate with other people. In English, it's really important. So yeah. That's it. So there are a lot of people. So I'll tell you one thing, because there are a lot of people and there are a lot of your friends, they might think कि English medium school से पढ़ाई की होगी, English medium में पूरा learn किया होगा, क्योंकि your pronunciation and your accent is commendable, and that is top notch. Do you know what is the meaning of top notch? That means ki it matches to the standards of the foreigners. Nobody can even believe on it that the conversation and the confidence which you have right now in front of the camera is totally outstanding. So what is how did you improve your voice and accent? I mean, how well your voice and accent, your pronunciation, how did you improve all of that? You just shared that as well, that why your pronunciation and your voice and accent is also top notch. Because you taught me from the scratch, like how to pronounce every word, every alphabet in American accent, and by rigorous practice, and as everyone knows that we have a WhatsApp group, and over that group every day share a voice note in American accent, and we just read it out loud and we send to your WhatsApp group. Yeah. So how active are we there on the Instagram? We are very much active on that group, and everyone send their voice memos over the WhatsApp. So yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया और थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा हमारी एकेडमी के अंदर साक्षी को भेजने के लिए और हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए. सो ये जो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं सर, ये जस्ट एक फीडबैक कॉल है, ताकि हर एक पेरेंट्स तक हम लोग अपनी वॉइस लेके जा सके कि लर्निंग्स एकेडमी स्टार्ट करने के पीछे हमारा क्या मिशन था और हम लोग किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि हम पेरेंट्स से रूबरू हो सकें कि जितना भी हम लोगों ने स्किल्स अपने बच्चों के ऊपर इम्पार्ट किया है उसके अंदर आपको कितना बेनिफिट हुआ है. सो सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम में बच्ची को स्किल सिखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि साक्षी इतने टाइम से 4 मंथ्स हमारे पास में आ रही है, तो आपको क्यों लगा कि स्किल सीखना आज के टाइम में बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी, थैंक यू सर. मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो टाइम है ये AI और चैट GPT का टाइम है. करेक्ट. और इस समय इंग्लिश है वो बहुत ही कंपलसरी है. करेक्ट. पहले तो ये कहा जाता था कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता है वो इलिटरेट है. करेक्ट. आज के ज़माने में जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है ना वो इलिटरेट है. मैं ये कहना चाहूँगा. करेक्ट. सो आज के टाइम में, और देखा होगा सर, जैसे आपने करेक्टली ये पॉइंट मेंशन किया है कि हम सबको ये तो पता है कि चैट GPT आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इतने से सब इंसान वाकिफ है, लेकिन इसको यूज करने के लिए भी एक भाषा की रिक्वायरमेंट होती है जो इंग्लिश. अगर हमें इफ वी कैन नॉट टाइप, देन ऑन व्हाट बेसिस वी कैन लर्न एंड यूज दिस लैंग्वेज. तो चैट GPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम को बहुत ईजी बनाता है, और वो चीजें कब पॉसिबल होगी? द मोमेंट वी लर्न इंग्लिश. और आज आपने देखा होगा सर, आज छोटे शहरों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि स्कूलों के अंदर बच्चों को सब्जेक्ट सिखाया जाता है, तो वो बच्चा कभी भी बोल भी नहीं पाएगा. और लैंग्वेज सर कभी सब्जेक्ट से नहीं सीखी जाती है, वो जितना हम बोलते हैं, जितना हम लोग लर्न करते हैं, वो उतना ही बच्चा सीखता है. राइट सर? तो साक्षी सर हमारी एकेडमी की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर है, और हिंदी मीडियम के अंदर होने के बाद में
कि सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, राइट सर? तो आपके लिए कितनी प्राउड वाली फीलिंग्स हैं सर कि मतलब जब से आप इतने टाइम से आप भेज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सर हमारी एकेडमी में कितनी मेहनत हुई होगी और आप कितने खुश हैं सर हमारी एकेडमी के फीडबैक को लेकर? जी, मैं ये कहना चाहूँगा मेरे सभी साथियों से या देखने वालों से कि मैं जब यहाँ आया था तो सर से मेरा इंटरेक्शन हुआ था। करेक्ट। तो कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे समझाया था और मैं उस दिन ही प्रभावित हो गया था। और उसके बाद में मैंने मेरी बच्ची ये जो साक्षी है इसको बेचा था, तो इसकी परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत खुश हूँ। और ये सभी आपकी बदौलत हुआ है सर। नहीं सर, आप उससे पहले आपने जो हमारे ऊपर ट्रस्ट किया वो चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि शायद उस दिन हम मिलते नहीं और आपने अगर मेरे पे विश्वास किया ही नहीं होता तो शायद इतना जबरदस्त रिजल्ट हम नहीं प्रोवाइड करवा। और मैं सर ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी फैमिली में आज बात भी हो रही होंगी कि साक्षी जो चीजें सीखे वो जबरदस्त सीखे, ऐसा फील कर रहे हैं सर आप? एब्सोल्युटली, आप फील कर पा रहे हैं? नो डाउट सर। और परिवार में भी बातें हो रही होगी कि साक्षी जबरदस्त सीखी है। और उस दिन साक्षी के मामा जी भी आए थे, उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि मतलब वो शायद स्पेशली उन्होंने भी कहा होगा कि मेरे को भी एक बार जाके मिलना है, उनको फीडबैक देना है। तो एक दिल से खुशी होती है सर कि जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पेरेंट्स के लिए इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है सर। 99% पेरेंट्स का सर मैं आपको माइंडसेट बताना चाहता हूं, सरदार शहर के पेरेंट्स का माइंडसेट। उनको क्या लगता है कि आज के टाइम में अगर 95% अगर मेरे बच्चे के आ रहे तो सर क्या वो इंटेलिजेंट की निशानी है क्या सर? आपको क्या लगता है सर कि अगर आज नंबर से सब कुछ है क्या? नहीं, नंबर से कुछ नहीं होता। आज का जो समय है उसमें स्किल सबसे जरूरी होता है। Correct. और वो काम आप कर रहे हो। आपकी जो ये लर्निंग एकेडमी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बच्चों में स्किल है वो डेवलप कर रही है, उनका होलिस्टिक है जो प्रोग्रेस वो आप कर रहे हो। करेक्ट। और दूसरी चीज सर, वो यहाँ पे हमने बुलाया बच्चे को और आगे बुला के हम लोगों ने उनसे बुलवाया तो पता चला कि हमारी बच्चे में इतना भी टैलेंट हो सकता था क्या। लेकिन वो कहते हैं ना कि सर कोयले की वैल्यू तब तक नहीं होती है जब तक उसको तराशा नहीं जाता है, और एक पेरेंट को अपने बच्चे की वैल्यू तब तक पता नहीं चलती है जब तक ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं उनको। तभी हमें पता चलता है कि मेरे बच्चे के अंदर इतना भी स्किल्स था क्या। कि बच्चों के पास में आज नॉलेज बहुत है, आज डिग्रियां बहुत हैं उनके पास में, लेकिन इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इतने में नाम के अलावा कुछ नहीं निकलता है उनसे। ये रियलिटी है सर। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर बच्चा ना सर किसके पीछे भागता रहता है? नंबर के पीछे, नंबर के पीछे, नंबर के पीछे। और आज के टाइम में सर, आज आपने देखा होगा कि आज टाइम बदल रहा है। आज रियलिटी स्कूल्स की सर आपको भी पता है, आपसे छुपी हुई है नहीं। आज सरदार शहर की स्कूल्स में क्या हो रहा है कि आज बच्चों को वही 30 साल 40 साल पुरानी चीजें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे हैं मॉडर्न, और एजुकेशन चल रही है ओल्डर वर्जन। तो हर कंपनी अपने ऐप को हर 30 डेज के अंदर अपडेट करती है। तो अगर आज हम लोग अपने बच्चों को अपडेट नहीं करेंगे ना ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि बच्चे पीछे रह सकते हैं। और ये हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है सर जो हम लोग आज लर्निंग एकेडमी में कर रहे हैं, कि जो चीजें हम लोग आज प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, ये कंप्लीट मॉडर्न एजुकेशन है। कि बच्चा जितना चीजें आज के टाइम में मॉडर्न एजुकेशन में सीखता है ना, तो आज हमारे पास में पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा इतना जबरदस्त बोल लेता है, मेरी बेटी इतना जबरदस्त परफॉर्म कर लेती है सर, ये तो पता ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि सर जब तक हम लोग तराशते नहीं है ना तो वो वैल्यू नहीं बनती है, हम तराशते हैं तो वो रिजल्ट वैसा पेरेंट्स को दिखता है सर। तो कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत सारे लोग हैं, हमारा मेन मकसद है कि हर पेरेंट ना जागरूक हो स्किल्स को लेके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। क्योंकि आज भी ना इतने पेरेंट्स ना अपने बच्चों के अनएम्प्लॉयमेंट को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चा 10वीं पढ़ता है, 12वीं पढ़ता है, कॉलेज करता है और आज नौकरी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि आज स्किल्स की वजह से उनको 100 कदम पीछे छोड़ दिया, और जो बच्चा स्किल्स में तेज है वो तुरंत नौकरी लेके निकल गया। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर उन पेरेंट्स को कि आज ये चीज़ें सीखना क्यों ज़रूरी है, और क्यों उन पेरेंट्स को कि 10% अगर पेरेंट्स के बच्चे के नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपके बच्चे को कितना आगे की तरफ लेके जा सकती है, ये क्यों जरूरी है? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज नंबर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज क्या होता है, हर चीज़ में, हर कंपटीशन में जो कंपटीशन होती है पढ़ने के बाद में, उसमें जो नंबर आते हैं वैल्यू उनकी होती है, नहीं कि आप उनके ऊपर जो बच्चों पे प्रेशर बनाते हो कि 95 लेके आओ, आप मेरिट में आओ, आप 90 से अबो ही रहो, नीचे मत रहो। मतलब कहने का मतलब है कि पेरेंट्स है वो उन पे इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चे हैं वो मेंटली टॉर्चर होते हैं उससे। जबकि उनको कहना यही चाहिए कि भी आपकी रुचि किस में है। आप स्किल डेवलपमेंट करो, किसी कोचिंग में जाओ, या और जो संस्थाएं हैं, जो अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो आपको स्किल सिखाती है, आपका डेवलपमेंट करती है, वहाँ बच्चों को भेजना चाहिए, नहीं कि उन पे
उनको मेंटली टॉर्चर किया जाए। अननेसेसरी प्रेशर बच्चे को सर, वो कहता है ना कि जो चीजें सीखना भी चाहता था ना वो, उससे भी उसका इंटरेस्ट फिर दूर हो जाता है। आज भी छोटे शहरों में ना लोग उलझे बैठे हैं किन चीजों के अंदर, क्योंकि नंबरों के एक जाल में फंसा हुआ है बच्चा। क्योंकि सर वो कहते हैं ना कि बच्चे को जब तक काबिलियत अपनी पता ही नहीं होगी तो वो कैसे सीखेगा। तो वही चीज़ है सर, हमने इस इनिशिएटिव के साथ में लर्निंग्स एकेडमी स्टार्ट किया है सर, और हमारी यही कोशिश है कि हर पेरेंट्स तक हम लोग पहुँचें और हर पेरेंट्स तक हम अवेयरनेस लेके आएँ कि आज बच्चे को आगे आके परफॉर्म करना और अपनी स्किल्स को बेहतरीन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर। सो मैं अगेन धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपका हमारी अकेडमी में आने के लिए और बच्चे का फीडबैक ने। जी सर। बीच में रोकते हुए कि when I watch him speak English, Okay. I would like to say that I am also interested in English. मतलब आपको भी इंटरेस्ट आने लग गया कि मेरे को भी सीखना है इंग्लिश। हाँ। तो ये चीज, चलो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी के इंग्लिश में वीडियोस देखे उसको बोलते हुए, तो सर के भी अंदर से इच्छा हुई कि मेरे को भी इंग्लिश सीखनी चाहिए। ऐसे ही विश्वास सर आप अपना बनाए रखिए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं सर, जब कोई बच्चा हमारे पास में आता है तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है सर, और इसी जिम्मेदारी को हम सीरियस में लेते हुए ऐसे रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं सर। हमारा कहीं मार्केटिंग नहीं और कोई हम वीडियो पे ऐड नहीं चलाते हैं, हमारी जीरो ऐड है, और ऊपर वाले के रहम से मान लो या फिर हमारी मेहनत मान लो सर, हम दिन रात लगे रहते हैं सर बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए। घर जाते हैं, घर का होमवर्क अलग रहता है। यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जहाँ क्वालिटी दी जाती है ना, वहाँ ये एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट, मेरा तो मानना ये है। करेक्ट। तो मैंने तो ये पहले जब मैं यहाँ आया था, मैंने तो पहले दिन देख लिया था कि जहाँ ऐड नहीं है वहाँ बिल्कुल क्वालिटी है। देख लो, और उसी बात पे सर आज भी हम लोग कायम है सर। वो कहते हैं ना कि सर मार्केटिंग से इंसान एक बार आपके पास आएगा, लेकिन वो दोबारा किसी को बोलेगा नहीं कि तू वहां पे जा। आज हमारे पास आए हैं ना सर, तो इतने पेरेंट्स अपने एक बच्चे को भेजते हैं, फिर पूरे परिवार में जितने भी बच्चे हैं सबके एडमिशन करवाते हैं। तो वही चीज़ है सर, जहाँ पे ट्रस्ट है ना वहाँ पे हर बच्चा सीखता है सर। और इसी के साथ में हमें इतना मोटिवेशन मिला सर, और 8 मंथ्स हुए हैं सर, 100+ हमने बच्चों को सिखाया सर, और हमारी 0 नेगेटिव फीडबैक है सर। क्योंकि जितनी बच्चों के ऊपर हम मेहनत करते हैं, बच्चे को भी यकीन होता है कि हाँ यार मैं सीख सकता हूँ, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। क्योंकि स्कूलों के अंदर सर अलग रेस देख के अंदर भागता है बच्चा, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक एक्सपर्टीज रहती है। अब जैसे मेरे को इस फील्ड में सर 12 साल का एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।